Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello and welcome back to Steven Sir Makes It Easy, where the plan today is एसपी का चैप्टर जो 12th स्टैंडर्ड का सेकेंड चैप्टर है, सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, उसको आप चैप्टर के आखिरी पड़ाव तक हमको लेकर जाना है। ओके, पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने इतनी तो पढ़ाई कर ली है कि ये जो सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस है, एग्जामिनेशन में इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका मतलब क्या है और इसके ज़रिए क्या है। ओन्ड कैपिटल क्या होता है, बोरोड कैपिटल क्या होता है। बोरोड कैपिटल के अंदर काफ़ी लंबा लिस्ट हमने डिस्कस कर लिया है। डिबेंचर्स से एक कंपनी पैसा ले सकती है, डिपॉजिट पब्लिक डिपॉजिट से ले सकती है, बॉन्ड बेचकर ले सकती है, एडीआर जीडीआर के द्वारा ले सकती है, या कमर्शियल बैंक से पैसा ले सकती है, अलग अलग मीडियम्स एंड मोड्स के द्वारा। आज हम सीखने वाले हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऐसे कौन से हैं जहां से कंपनी उम्मीद कर सकती है पैसा लेने के लिए, और आखिरीकार ट्रेड क्रेडिट जो काफ़ी लो लेवल का हेल्प होता है, ये कैसे कंपनीज या बिजनेसमैन को मिलता है। ओके, तो आज हमारी गाड़ी पहुंची है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे। तो कंपनीज जिनको पैसा चाहिए ना, प्लीज़ अंडरस्टैंड, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको समझ में आ जाए कि पैसा जैसे हमारे शरीर को खून की ज़रूरत है, और वो खून ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कंटिन्यूअसली सर्कुलेट होना चाहिए। उसमें जो खराबी है, इम्प्यूरिटीज़ है, उसको फ्लश आउट किया जाना चाहिए। तो वी हैव एन एंटायर सिस्टम इन आवर बॉडी विच इज़ 24 आवर्स, 24/7, 365, 366 डेज अ ईयर ऑपरेट कर रहा है। वो रुक नहीं सकता। अगर रुक गया तो समझ लो ऊपर से न्योता आ गया। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ ब्लड खून के बारे में? क्योंकि मनी, फाइनेंस इज द ब्लड ऑफ अ बिजनेस। अगर बिजनेस को जिंदा रहना है तो उसमें जो पैसा है वो स्टेशनरी नहीं हो सकता, कब्र में रख दिया नहीं, उसको घूमते रहना है। पैसा आया गया, इसका सर्कुलेशन होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला, that there are people in why is the country of China in the past 20 years, okay, it was a country जो काफ़ी हद तक इंडिया के साथ में कंपेयर किया जा सकता था। मे बी 20 साल पहले, 30 साल पहले खेती बाड़ी वहाँ पर भी होती थी, वहाँ पर भी सिटीज़ का डेवलपमेंट नहीं हुआ था,
वहां पर भी लोग मैक्सिमम शहरों में कम और गांवों में ज्यादा रहते थे। बट आज एकाएक ये 30 सालों में फर्क क्या हुआ है? वहां की सरकार ने टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को और अपने व्यापारियों को, बिजनेसेस को, कंपनीज को एनकरेज किया। कैसे? उनके हेल्प करके। पैसे चाहिए, सरकार हेल्प करेगी। आपको लैंड चाहिए, सरकार हेल्प करेगी। आपके जहां पे आपने फैक्ट्री स्टार्ट किया है, रास्ते नहीं है, सरकार हेल्प करेगी। आपको बेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, सरकार हेल्प करेगी। रोड, रेलवेज, एयरवेज। ओके, पूरे विश्व में चाइना एक कंट्री है, पूरे विश्व में एयरबस और बोइंग, ये दो ऐसे एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स है जो एक जगह पर ये एयरक्राफ्ट बनाते हैं और पूरे विश्व में अपने एयरक्राफ्ट्स को बेचते हैं। क्योंकि दूसरे कोई कंट्री में इतने बड़े बड़े हवाई जहाज बनाने के लिए, टक्कर देने के लिए कोई कंपनी पैदा नहीं हुई है, बट छोटे छोटे कंपनीज हैं। हाँ, चाइना एक है जो अपना पूरा एयरक्राफ्ट बनाती है। तो आई रिपीट, वहां पर एनकरेजमेंट दिया गया था। तो इसके लिए आज वहां का जो क्लाइमेट है, बिजनेस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफी अलग है। चाइना इतना आगे जा चुका है कि काफी ऐसे देश है, श्रीलंका या पाकिस्तान, ओके, एशियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, जहां पर चाइना ने अपना इन्वेस्टमेंट किया है, अपनी तरफ से बड़े बड़े प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं। वो कहानी अलग है, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कैसे बदल गया। क्योंकि वहां पर पैसा, इन्वेस्टमेंट, प्रोत्साहन, एनकरेजमेंट सब सरकार की तरफ से आया। इंडिया में भी इंडियन सरकार ने यही कोशिश की है। इसके लिए उन्होंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खास करके शुरू किए हैं, जिनका ध्यान सिर्फ इंडस्ट्रीज और कंपनीज के पैसों के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए है। तो उन्होंने 1948 में जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में सोचा गया, उसके पहले हमारा भारत देश पूरी तरीके से खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता था और आज भी डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता, बट इट हैज टू बी डेवलपमेंट को पुश करने के लिए, बराबर, देयर हैड टू बी अ पुश। ओके, एक एनकरेजमेंट की, प्रोत्साहना की जरूरत थी। वो एनकरेजमेंट कैसे आया? बाय द इंडियन गवर्नमेंट मेकिंग अ लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस विच कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये अलग अलग कैटेगरीज में है। पहला कैटेगरी है डेवलपमेंट बैंक्स। कुछ ऐसे बैंक्स बनाए गए जिनका ध्यान उस समय was purely not on individual customer, was on corporate। के इंडस्ट्रीज है, रेलवे इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, टेलीकॉम इंडस्ट्री है, सर्विस इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है। जो इंडस्ट्री है, अगर आप कुछ मैन्युफैक्चर करते हो, अगर आप कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हो और आपको पैसे की जरूरत है, आप इन बैंक्स के पास जा सकते थे। IDBI, IFCI, ICICI, SIDBI, IRBI, सबका फुल फॉर्म अगले पेज पे आ जाएगा। कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे जो फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम करते थे। कुछ इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस थे। ये इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं? ये लोगों से पैसा लेते थे ताकि उनके ट्रेजरी में पैसा रहे और फिर ये LIC, GIC, UTI अपने तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सके। और ये था नेशनल लेवल पे डेवलपमेंट बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस, और स्टेट लेवल पे SFC एंड SIDB। ओके, ये सारे जो है इनकी जानकारी फुल फॉर्म, एटलीस्ट फुल फॉर्म यहाँ पर है। काफी लोगों ने हम में से IDBI सुना है, ICICI बहुत सुना है, बट कभी कभी ना फुल फॉर्म जाना नहीं है। हाँ, ICICI है, फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट, नॉट पर्सनल क्रेडिट, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। These were SIDBI, small industries development bank of India, so not big industries, small industries। क्योंकि everybody cannot be a Tata Mahindra, a Reliance, everybody cannot be, but टाटा जो गाड़ी बनाती है
उसमें इंजन की ज़रूरत है, नट बोल्ट की ज़रूरत है, उसमें लेदर की ज़रूरत है, उसमें स्टीयरिंग व्हील की ज़रूरत है, उसमें एल्यूमिनियम की ज़रूरत है, स्टील की ज़रूरत है, लाइट की ज़रूरत है, कितनी चीज़ों की ज़रूरत है। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज, कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज है जो सिर्फ सीट कवर बनाते हैं, जो सिर्फ सीट का हैंडल बनाते हैं, जो सिर्फ स्टीयरिंग का हैंडल बनाते हैं, जो सिर्फ स्टीयरिंग का व्हील बनाते हैं। सो आई रिपीट माई सेल्फ, देयर आर स्मॉल इंडस्ट्रीज, इनको भी तो प्रमोशन की जरूरत पड़ती है, इनको भी तो एनकरेजमेंट फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। तो कौन देता है इन्हें? सिडबी। दिस इज अ बैंक स्पेसिफिकली सेटअप फॉर दैट पर्पस। ओके, आजकल इन बैंक्स के अंदर, इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर डेफिनेटली चेंज हो गया है। आईसीआईसीआई बैंक एक जमाने में 20-25 साल पहले जब शुरुआत हुई थी, इट वॉज नॉट अ कमर्शियल बैंक, इट वॉज नॉट अ पर्सनल बैंकिंग बैंक, बिल्कुल नहीं था। ओके, इट वॉज स्पेसिफिकली मेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, बट येस, आज वो डेवलप कर गया है और उस फंक्शन के अलावा आजकल नॉर्मल बैंकिंग फैसिलिटीज, मॉडर्न बैंक के जो भी फंक्शंस है वो भी डेफिनेटली परफॉर्म करता है। इसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसमें रिस्क कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फाइनेंस कॉर्पोरेशन, रिस्क कैपिटल, क्योंकि टेक्नोलॉजी इज समथिंग दैट कैन बी सक्सेसफुल, दैट कैन नॉट बी सक्सेसफुल जब तक नए टेक्नोलॉजी को एनकरेज ना किया जाए, उसमें फंडिंग ना दिया जाए। ओके, देन हाउ कैन न्यू टेक्नोलॉजी बी यूज्ड, बी इंट्रोड्यूस्ड? तो ये खास करके उसके लिए यूज किया गया था। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, सॉरी, एंड इंफॉर्मेशन कॉर्पोरेशन, ये था TDI, CI एंड द लास्ट वन टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए TFCI। सो आई रिपीट माई सेल्फ, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन जहाँ पे LIC, GIC, UTI आता है, इन्होंने पब्लिक से पैसा लिया, छोटा छोटा पैसा लिया, इनकी ट्रेजरी में बहुत पैसा आया, फिर LIC ने इन्वेस्ट किया, फिर GIC ने इन्वेस्ट किया अलग अलग कॉर्पोरेट्स के अंदर। और लास्ट था स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस, ये अलग अलग स्टेट्स में एस्टैब्लिश किया गया था ताकि महाराष्ट्र में, गुजरात में, केरला में, वहाँ पे जो भी बिजनेसेस है उन लोगों को हेल्प हो सके। तो ये तो बात हुई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की। स्पेसिफिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बिजनेसमैन के लिए क्या करते हैं? वेल, अलग अलग चीज़ें देते हैं। लेंडिंग फैसिलिटी, एक तरीके से कर्जा देते हैं। शेयर्स एंड डिबेंचर्स, जैसे हमने इसके पहले कमर्शियल बैंक्स के बारे में ही पढ़ा था, अंडरराइट करते हैं, ये भी कमर्शियल बैंक्स करते हैं। लेंड मनी, सिंपल पैसा देते हैं। एंड लास्टली गारंटी टर्म लोन्स रेज्ड बाय अ कंपनी, जब कंपनी कैसे ऐसे जगह से लोन लेती है, वो जो लोन देता है लेंडर, वो बोलता है गारंटर लाओ। गारंटर का मतलब क्या है? अगर मेरा दोस्त एक बैंक के पास जाता है और हाउस लोन लेता है, और वो हाउस लोन देने वाला बैंक मेरे दोस्त को बोलता है, यार आप पैसे तो दे दोगे बट हमको गारंटर चाहिए, अगर आप नहीं दे पाए तो दूसरा कोई देगा। तो मेरा दोस्त मेरे पास आता है, यार स्टीवन तू मेरे लिए गारंटर खड़ा रहेगा? अगर मेरा अच्छा फ्रेंड है, ओके, अगर मैं उसमें विश्वास करता हूँ कि भैया ये कुछ नहीं करेगा, ये अपना पैसा लौटाएगा, मैं बोलेगा यस चलो आई स्टैंड इन फॉर अ गारंटर। बट बैंक्स भी ऐसा करते हैं, वो कंपनी के लिए एक गारंटर के जैसे खड़े रहते हैं, बट फ्री का नहीं रहता, उसके लिए चार्जेस रहता है। इस तरीके से वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, वो इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस हो, वो डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस हो, या वो स्टेट लेवल पे काम करते हो, वो अलग अलग तरीके से जो भी रिक्वायरमेंट है, मीडियम या लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस कॉर्पोरेट्स फुलफिल करते हैं। नाउ द वेरी लास्ट थिंग फॉर यू एज अ स्टूडेंट, सर मैं तो 12th स्टैंडर्ड में हूँ, दीज बिग कंपनीज दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, आई डोंट हैव मच इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट। आई इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के आगे, आई सी दैट देर इज वन बनिया अंकल, वन अंकल हु हैज अ शॉप, ओके, ही इज सेलिंग टी, कॉफी, chocolates, bread, okay, sabun, toothpaste. Does he get any kind of help? Yes. What he gets is trade credit. What do you mean by credit? Time to pay. Okay, and these small shopkeepers in India, there are gina chuna big bazaar, DMart, gina chuna, Reliance Retail, gina chuna. But there are lakhs and lakhs of small shopkeepers, 99% the product that you buy on a daily basis is from a small shop, जो आपके गली में सिचुएटेड है, आपके सोसाइटी के बाहर मार्केट प्लेस के अंदर सिचुएटेड है। ये लोगों को मदद, पैसों की मदद, they can't again and again go to big banks. No, big banks want big fish. These are small. So whom do they go to? They look to their supplier. पानी कौन सप्लाई करता है?
पाव कौन सप्लाई करता है, बिस्किट कौन सप्लाई करता है, साबुन कौन सप्लाई करता है, तेल कौन सप्लाई करता है, एंड दे टेक द गुड्स, ये जो दुकानदार है, विच आर इन लैक्स इन द एंटायर कंट्री ऑफ इंडिया। ओके, हाँ, ये लोग जो जब बिस्लेरी कंपनी पानी लेके आती है तो वो कंपनी को बोलती है, डिस्ट्रीब्यूटर को बोलती है पेमेंट 1 महीने बाद। दैट 1 महीना इज क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड इज व्हाट दे आर डूइंग, बाइंग एंड सेलिंग। Credit is the time that they get to make the payment. It helps them very importantly because they get 1 month's time because they have to sell the product. Then the money will come. Then they can pay the supplier. Similarly, biscuit, ice cream, every big company को पता है कि छोटे दुकानदार को क्रेडिट चाहिए और उनको वो मिलता है। ऐसे ही सदियों से चलता आ रहा है क्रेडिट। दिस इज द वेरी इजी फॉर्म ऑफ क्रेडिट, हेल्प। पैसे नहीं दे रहे, नहीं, बट पैसा रिटर्न करने के लिए टाइम दे रहे, दैट्स ऑल्सो हेल्प। एंड द बेस्ट थिंग, देर इज नो इंटरेस्ट एंड देर इज नो पेपर वर्क इन दिस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दीज बिजनेसमैन, दे डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू अगेन एंड अगेन, दोबारा किसके अंदर उनको घुसना नहीं है, किसके अंदर घुसना नहीं है उनको, पेपर वर्क। मेरे को इतना 1000 चाहिए, वापस पेपर बनाओ, मेरे को और पैसा चाहिए, वापस पैसे बनाओ। अरे यार, क्या इंटरेस्ट से नहीं चाहिए। अगर उनको 1 महीने का टाइम मिलता है, 15 दिन का टाइम मिलता है, 60 डेज का टाइम मिलता है, वो बिना कोई पेपर वर्क के मिल जाता है। उनको कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। एंड मैक्सिमम ऑफ द शॉपकीपर्स स्पेशली इन द कंट्री ऑफ इंडिया, ओके, जो गांव देहात में है, जहां पर मेनी कस्टमर्स गो, क्योंकि गांव देहात के अंदर बिग बाजार अभी तक खुला नहीं है। ओके, हमारा जो पूरा देश है उसको टायर 1, TYER नहीं, TIER, ओके, द बेटर सिटीज, टायर 2 द नॉट सो बेटर सिटीज, एंड टायर 3 द गांव देहात। वहाँ पे हमारा मे बी 70 से 80% जो जनता है वहाँ पर रहती है। तो वहाँ के दुकानदार जो है उनको पेपर वर्क के अंदर नहीं जाना, उनको इंटरेस्ट नहीं देना। तो उनकी सहायता पैसों में कैसे की जा सकती है, ट्रेड क्रेडिट। और ट्रेड क्रेडिट उनको सालों से मिलता आ रहा है। सिंपल सी बात है कि भैया वो प्रोडक्ट ले लेते हैं और प्रोडक्ट का जो पेमेंट है वो कुछ समय के बाद करते हैं। उसके वजह से सप्लायर भी खुश हो जाता है क्योंकि उसका प्रोडक्ट खरीदा जा रहा है, दुकानदार भी खुश हो जाता है क्योंकि उसको पेमेंट करने के लिए समय दिया जा रहा है। तो ट्रेड क्रेडिट, बाकी जितनी हमने चर्चा कर ली, डिबेंचर्स, बॉन्ड, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बराबर GDR, ADR और कमर्शियल बैंक्स, ये सारे कॉरपोरेट लेवल पे। बट जहाँ तक छोटे दुकानों की बात होती है, दुकानदारों की बात होती है, वहाँ पर ट्रेड क्रेडिट बड़ी मात्रा में चलता है, जहाँ पे पैसे डायरेक्टली नहीं दिए जाते बट पैसे का पेमेंट करने के लिए टाइम दिया जाता है, जिसके वजह से इन बिजनेसमैन की हेल्प ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी है। ये करने के बाद में मैं आपसे इतना ज़रूर कह सकता हूं कि हमारा ओन्ड कैपिटल का लिस्ट और बोरोड कैपिटल का लिस्ट ट्रेड क्रेडिट तक कंप्लीट हो चुका है। अगली बार जब मिलेंगे तो ओन्ड कैपिटल और बोरोड कैपिटल के बीच में हम क्या करेंगे, डिस्टिंक्शन बिटवीन करेंगे, और उसके बाद में एक समरी लेक्चर होगा, और उसके बाद में क्या कहते हैं, हमारे वेबसाइट पे और टेलीग्राम के प्लेटफॉर्म पे आपको ये चैप्टर का पूरा PDF हमारे जो मिस्टर टेक्निकल है वो उसको पूरा समराइज़ कर देंगे और आपके साथ में शेयर कर लेंगे। अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कर लेना। अगर ये लेक्चर आपको समझ में आ गया और उसकी पढ़ाई लिखाई आपको समझ में आ गई, लेक्चर को ज़रूर लाइक कर लीजिए, कमेंट बॉक्स का उपयोग कीजिए। कोई भी सजेशन है आपके पास, अगर आपको हमको देना है, कोई रिक्वेस्ट है और वो करना है, कमेंट बॉक्स का उपयोग हमेशा कर सकते हो। अपने दोस्तों तक हमारे चैनल की जानकारी ज़रूर पहुँचा दिए। चैनल के ऊपर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जब तक हम अगली बार दोबारा ना मिले, अपना ख्याल रखिए, बड़ों का, छोटों का और परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखिए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय बाय।